Hello students, so now we're discussing about the thyroid gland, and at the end we are talking about the disorders of thyroid gland. So what are the disorders of thyroid? If you remember the last lecture, at the end we discussed about disorders of thyroid gland. So mainly it is classified into two types. Number one is called hypothyroidism and the second is called hyperthyroidism, right? If you remember, we already discussed this particular concept in the last lecture. I have shown you some images also to understand the hypo and hyperthyroidism. हम लोगों ने पहले ये सब देख चुके हैं. So there are three manifestations of this hypothyroidism. One is called, yes, it's called cretinism. The second is called myxedema, and the third one is simple goiter, right? So number one is cretinism, the second is myxedema, and number three is called simple goiter. We discuss all these things. Remember, for MCQs, for NEET, you need to remember myxedema is also called as girls disease, G-U-L-L-S. It is also called girls disease. Cretinism, this cretinism is seen in childhood. This myxedema is in adults. And this condition is hyperthyroidism, which is also called as Graves' disease. If you remember last lecture, it can be called as exophthalmos. Okay? It is also called as exophthalmic goiter, and it is also by the name of scientist. It is also called Bazirou's disease, और इसमें और एक साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, also called Plummer's disease, या तो फिर आप इसको बोलो थायरोटॉक्सिकोसिस. क्या बोलेंगे हम इसको? थायरोटॉक्सिकोसिस. देखिए अलग अलग नाम मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है. We studied Graves' disease because it is very severe condition. It is exophthalmos because there is protrusion of the eyeball takes place. It's Bazirou's disease, Plummer's disease by the disc coverers. And it is thyrotoxicosis because it can lead to the toxic conditions in our body. This is hypothyroidism and this is hyperthyroidism, right? So we have seen, you just go through the last video. I explained these particular conditions by using the different images and different videos also, right? Now let us try to understand. Now students, you will be surprised that कि goiter जो यहाँ पे भी लिखा है मैंने, goiter, yes, so goiter, you know, inflammation of the gland, thyroid gland. यहाँ पे भी आपको goiter मिलेगा, यहाँ पे भी आपको goiter मिलेगा. आपने पूछना चाहिए कि सर दोनों जगह पे goiter ऐसा कैसा हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन में बेटा क्या है, TSH का एक्सेस है, ये कंडीशन में TSH ज्यादा रहेगा. हम लोग पहले ही पढ़ चुके, मैंने आपको बोल दिया था. इन दिस कंडीशन देयर इज एक्सेस ऑफ TSH एंड इन दिस कंडीशन यहाँ पे एक्सेस ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक कंट्रोल. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस ऑफ दिस गोइटर एंड दिस गोइटर. हाइपो में कौन सा गोइटर है, हाइपर में कौन सा गोइटर. देखिए बच्चों कि बहुत सारी चीज आपकी किताब में है नहीं, पर मैंने आपको पहले ही बोला था कंसेप्चुअली आपको पढ़ना है तो इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए. नीट के जो टोटल मार्क्स आपको इसी तरह से लाने चाहिए. तो चलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड गोइटर इन हाइपोथायरॉइड एंड गोइटर इन हाइपरथायरॉइड. देखिए बराबर से, ठीक है, दोनों केस में. हियर आई एम राइटिंग गोइटर इन हाइपोथायरॉइड एंड दिस इज गोइटर इन, ओके, goiter in hyperthyroid. होता क्या है? So we discussed that the thyroid gland is made up of the structures called follicles. देखिए ये follicular cells है, right? ये follicular cells बच्चा कौन सी epithelium से होता है बताइए मुझे, आपको याद होगा. Yes, it's cuboidal epithelial cells. ये cuboidal epithelial cells होते हैं, बेसिकली secretion का फंक्शन होता है. ये जो अंदर मैंने मटेरियल बनाया ये क्या है बताइए. यस, याद कीजिए ये कोलॉइड है और ये किस चीज से बनता है. इट इज मेड अप ऑफ थायरोग्लोबुलिन. अभी क्या होना है हाइपोथायरॉइड के अंदर, हाइपोथायरॉइड के अंदर you can see the level of TSH. यहाँ पे से जो TSH हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो यहाँ पे एक्ट करेगा, क्योंकि कंडीशन बच्चों है हाइपोथायरॉइडिज्म. इसका मतलब ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का लेवल कम है, तो उस लेवल को बढ़ाने के लिए एक पॉजिटिव फीडबैक दिया जाएगा, वो देगा TSH. तो अभी क्या होना है, अभी इसमें
थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। जैसे ही थायरोग्लोबुलिन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा, नेचुरली जो साइज है फॉलिकल का साइज, देखो बेटे मैंने डायग्राम में यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है, तो फॉलिकल का जो साइज है वो भी साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा। और इसी साइज बढ़ने को हम क्या बोलते हैं बेटा, गोइटर बोलते हैं, बिकॉज यू नो दैट द थायराइड इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलिकल्स, सॉरी द लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का साइज बढ़ेगा तो थायराइड का साइज बढ़ जाएगा, इसी तरह से यहाँ पे स्वेलिंग पता चलेगी, एंड दैट इज नथिंग बट द गोइटर। ये केस होता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्टिम्युलेशन ऑफ टीएसएच, एक्सेसिव सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट। यहां पे चलिए, अभी यहाँ पे तो टीएसएच का लेवल जो है कम है, यहाँ पे टीएसएच कम आएगा तो आपने पूछना चाहिए कि सर यहाँ पे तो टीएसएच एक्सेस हम समझ के बराबर ग्लाइकोप्रोटीन बढ़ गया था, यहाँ पे तो टीएसएच बहुत कम आ रहा है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ का जो मैकेनिज्म है बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। देखिए ये फॉलिकल है, तो ये फॉलिकल का मैंने अगेन बना दिया क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबिकल सेल्स है, ठीक है, रफली बना रहे हैं हम, आपको ध्यान रखें क्यूबॉइडल सेल्स है। तो ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है, हाइपो के अंदर टीएसएच कम होने के बाद ये सेल्स आपके कन्वर्ट हो जाते हैं यस कॉलमनार सेल्स में। देखिए बराबर ये कॉलमनार सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो कोलॉइड है उसका जो है सिंथेसिस नहीं रहेगा, बट ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स ऑफ फॉलिकल एंड दीज आर यस कॉलमनार सेल्स ऑफ फॉलिकल। तो इस तरह से इसमें भी आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे भी स्वेलिंग दिखाई देगी। इसका मतलब दोनों केस में भी आपको थायराइड का स्वेलिंग दिखेगा, बट दोनों का मैकेनिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कराया, शायद ये बुक में आपके बुक्स में है नहीं, पर आपको समझना पड़ेगा, आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चा, एट द एंड वी कैन टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स। अगर किसी को थायराइड का, बिकॉज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी आपको बोला था, what is the treatment of thyroid disorders। अगर थायराइड का किसी को प्रॉब्लम है तो भाई उसका आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे उसी तरह से। एक कंडीशन है हाइपोथायरॉइड और दूसरा कंडीशन है हाइपरथायरॉइड। ये क्वेश्चन मैंने देखा है नीट के अंदर पूछा गया है। बच्चों अभी हाइपोथायरॉइड अगर है तो इसका मतलब ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन कम है, तो हम ऐसे पेशेंट को थायरॉक्सिन ओरली टैबलेट के फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। तो थायरॉक्सिन टैबलेट्स आर अवेलेबल, अलग अलग पोटेंसी में थायरॉक्सिन का टैबलेट होता है, वो हम पेशेंट को 25, 50, 100 इस मात्रा में दे सकते हैं, और आपको उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉइड, आप उसको थायरॉक्सिन दे रहे हो बराबर से, तो अगर पेशेंट बराबर मॉनिटाइज नहीं होता है तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, ये जो हाइपोथायरॉइड है वो हाइपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए ऐसे पेशेंट को हमेशा अपना थायरॉक्सिन का लेवल देखना चाहिए, टीएसएच का लेवल देखते रहना चाहिए, डॉक्टर जैसा एडवाइस दे देते। बच्चे यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट हाइपरथायरॉइडिज्म, यहाँ पे थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे एंटी थायराइड मेडिसिन देना है। क्या देना है, एंटी थायराइड मेडिसिन। और बहुत कॉमन एक एंटी थायराइड मेडिसिन है, उसका नाम है कार्बामेज़ापाइन। ओके, ये कार्बामेज़ापाइन करके एक ड्रग होता है, वो एंटी थायराइड का काम करेंगे। या तो फिर आइसोटोप्स ऑफ आयोडीन 131 आयोडीन, ये भी एक ट्रीटमेंट होता है। 131 आयोडीन जो होता है ये भी हम पेशेंट को दे सकते हैं अगर पेशेंट इस कंडीशन से हाइपोथायरॉइड से सफर करता है। पर देखिए इस चीज में ऐसा है कि हाइपोथायरॉइडिज्म पर ट्रीटमेंट करना बड़ा आसान है हाइपो को, बट हाइपर का ट्रीटमेंट थोड़ा सा गड़बड़ होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड। नेवर फॉरगेट, थायराइड के अंदर मैंने एक कंडीशन एमसीक्यूज में पढ़ा है, बहुत सारा अलग अलग डिसऑर्डर्स थायराइड्स में है, तो ये देखिए मैं यहां पे लिखूंगा, इट्स कॉल्ड हाशिमोटोस डिजीज। आप बोलेंगे कहां से आ गया, तो बच्चों ये थायराइड का ही डिजीज है, डिसऑर्डर है। व्हाट इज हाशिमोटोस डिजीज, इट इज नथिंग बट, इसमें मैं लिखूंगा ये है ऑटो इम्यून डिजीज। आपको पता होना चाहिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होता है, जैसे आप लोग पहले ही पढ़ चुके, मायस्थेनिया ग्रेविस करके आपने पढ़ा था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी के अंदर आप लोग पढ़ चुके, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम लोगों ने पढ़े हैं, जीबीएस, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जहां पे मतलब सेल डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, एंटीबॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते सेल्फ एंड नॉन सेल्स में। अभी क्या होगा, व्हाट इज हाशिमोटो डिजीज, तो देखिए किसी कारण होगा क्या
समझ लीजिए ये फॉलिकल है, तो फॉलिकल के अंदर मैंने क्या बनाया था, ये है कोलॉइड, कोलॉइड के अंदर थायरोग्लोबुलिन। और बच्चों देखो ये ब्लड है, कभी किसी कारण क्या हो जाता है, समझो ट्यूमर या कुछ अलग सा रीजन है, ये थायरोग्लोबुलिन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ थायराइड के फॉलिकल के अंदर ही रहता है, वही बनता है। बट अगर किसी कारण ये जो थायरोग्लोबुलिन है ये अगर ब्लड में चला गया, ठीक है, तो दिस मॉलिक्यूल जो ब्लू कलर में मैं बना रहा हूं, याद रखिएगा ये क्या है बच्चों, ये है थायरोग्लोबुलिन। तो मैंने क्या बोला था कि थायरोग्लोबुलिन सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलेगा, थायराइड फॉलिकल के अंदर मिलेगा, वही सिंथेसिस होता है, वहां से बाहर नहीं आ सकता, याद रखिए, वहीं पे थायरोक्सिन स्टोर होता है। बेसिकली कोई भी हार्मोन हम स्टोर नहीं कर सकते विद द एक्सेप्शन ऑफ थायरोक्सिन T3 एंड T4। यहां पे देखो थायरोग्लोबुलिन बच्चों भी कहां पे आ गया, ये जो रेड कलर का मैं बनाऊंगा, याद रखिए ये ब्लड वेसल्स या ब्लड से रिलेटेड रहेंगे, ब्लड में आ गया। तो अभी यहां पे जो एंटीबॉडीज है उनके लिए थायरोग्लोबुलिन पूरा नया सब्सटेंस है, या फिर अलग है, या फिर फॉरेन सब्सटेंस है, ये तो ब्लड में था नहीं, अचानक से कहां से आ गया। तो इसीलिए बॉडी क्या करेगी, इम्यूनिटी सिस्टम क्या करेगी, इसको किल करने के लिए, इससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बना देंगे। बच्चों क्या बना देंगे, एंटीबॉडीज बना देंगे। तो देखिए ये बन गए एंटीबॉडीज, इस तरह से वाई शेप्ड एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीबॉडीज बन गए टू किल दिस थायरोग्लोबुलिन। यही एंटीबॉडीज यहां पे भी एक्ट कर सकते हैं, सेम एंटीबॉडीज यहां पे एक्ट कर सकते हैं, और इसकी वजह से इसका सिंथेसिस कम हो जाएगा, TSH का लेवल बढ़ जाएगा, और उसी तरह से यहां पे थायराइड का आपको स्वेलिंग दिखेगा, थायराइडाइटिस हम इसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइडाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है, सो इट्स हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, हाशिमोटोस डिजीज, जिसके अंदर थायराइड का स्वेलिंग आपको दिखेगा। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म है, ऐसी बीमारी को बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू उसके लिए हाशिमोटोस डिजीज का बहुत सारी किताबों में, हर एक एमसीक्यू के बुक में आपको इसका देख सकते हैं कि ये क्या होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने थायराइड ग्लैंड आज खत्म करी है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा सा ग्लैंड है थायराइड की ही बैक साइड में आपको मिलेगा, उसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। इतना छोटा सा ग्लैंड है, साइज ऑफ ग्रेन, मतलब बाजरे का आपका जो इसका राइस का जो ग्रेन होता है उसके साइज वाला ग्लैंड है, बट हमारी पूरी बॉडी को कैल्शियम को कंट्रोल करता है, पोटेशियम को कंट्रोल करता है, वो हम अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। टिल देन बाय बाय।